state of matter today. So in gaseous state or state of matter, first we'll see the state variables including temperature, pressure and volume, its units. We'll revise volume के unit, temperature के unit and pressure के unit. Then we'll start basic gaseous laws including Boyle's law, Charles' law, Avogadro hypothesis. We'll do ideal gas equation. It will take around 2 lectures. Well, meanwhile, we cover up something known as, let's say, manometer and barometer tube also. So around 2 lecture में हम लोग gaseous state पढ़ लेंगे. उसके बाद कुछ Dalton's law of partial pressure है, Graham's law of effusion and diffusion है, kinetic theory of gas है, and real gas and its properties and real gas equation है. तो as per chapter is concerned, atomic structure से छोटा है chapter है ना. उतने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी नहीं हैं जितने एटॉमिक में थे कॉन्सेप्ट. सो यू कैन सी दिस चैप्टर समवेयर इन बिटवीन मोल कॉन्सेप्ट एंड मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना. तो उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कम ही फार्मूले हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ना, जैसा मोल कॉन्सेप्ट में होता था उसके जैसा सा कुछ है ना, बट उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा उसमें और भी फंडे हैं ना गैसेस स्टेट. सो अभी सब मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है यार. सो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक definition of state of matter. We'll see gaseous state, we'll see properties of state variables or something like this. So let's say first thing is जो कभी 9th में 10th में भी कुछ बच्चों ने पढ़ा होता है, it is state, let's say state of matter. As per NCERT book is concerned, this chapter is nothing but state of matter only. So in state of matter, yes, we have how many state of matters? मतलब कितने हैं state of matter हम लोगों के पास? 5 and then mainly let's say we have 3 mainly. Yes. So you can say, let's say there may be, let's say, yes, 3 main है and then actually हम लोगों के पास 3 से ज्यादा हो सकता था. So there may be, let's say ऐसे लिख लेते हैं 5 state of matter, including, you can simply say solid state. It is, let's say, liquid state. Similarly, this may be gaseous state. It may be, let's say, plasma, and another maybe it is Bose-Einstein condensate. So एक solid state है, एक liquid state, gaseous state, plasma and Bose-Einstein condensate. But mainly as per let's say JEE syllabus या NEET syllabus is concerned, mainly we have solid state, liquid state and gaseous state. As per gaseous state is concerned, ये तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में है और दोनों में ठीक ठाक डिटेल में है. Liquid state mainly you have in physics class 11th, and solid state mainly you have in class 12th according to class 12th NCERT book. So mainly as per this chapter is concerned, we'll deal mainly with gaseous state only. So out of this solid, liquid and gas, yes, can you suggest me, let's say H2O at 1 degree Celsius. H2O at 1 degree Celsius will be सॉलिड होने वाला है, लिक्विड होने वाला है या वेपर होने वाला है? वाटर एट 1 degree Celsius
ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि वेपर होता है? Liquid. Liquid. लिक्विड। It will Confirmly? start changing into Liquid. solid. ये सॉलिड और वेपर नहीं हो चेंज वाले सकता है फेज में होता है। 1 डिग्री सेल्सियस पे। सर प्रेशर पे भी डिपेंड होता है। Yeah, sir. so it depends on pressure also, है ना? So it may be solid, it may be liquid, it may be vapor, depends on, let's say, pressure also. So do you think उस मैटर का क्या स्टेट होने वाला है? डू यू थिंक वो उसके टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, वॉल्यूम पे, उन सबको मिला के डिपेंड करता होगा, है ना? सो वी हैव समथिंग नोन एज, लेट्स से, स्टेट वेरिएबल्स. सो स्टेट वेरिएबल मीन्स, लेट्स से, द पैरामीटर्स, the parameters of, let's say, state, या parameter of matter हम लोग लिख सकते हैं. The parameter of matter including pressure, temperature, volume, number of moles, etc., which decide its state. जो सब मिला के उस मैटर का स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, उन सबको हम लोग स्टेट वेरिएबल बोल सकते हैं. तो सिर्फ टेम्परेचर के बेस पे हम लोग नहीं बता सकते थे कि उस मैटर का क्या स्टेट रहने वाला है, और ऐसा ही हम लोग सिर्फ प्रेशर के हिसाब से नहीं बता सकते हैं कि उस मैटर का क्या स्टेट रहने वाला है ना? जैसे बच्चे ये टर्म समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there is a few set of parameter including pressure, temperature, volume, number of moles, etc. है ना? वो सब मिला के डिफाइन होने वाला था स्टेट ऑफ मैटर, है ना? So can you show last page? यस, वो तुम लोग लिखा था क्या कि नहीं? सर लास्ट वाला लिखना है. थोड़ा सा बात. मेरा कुछ वो पेज 1 मिनट गायब हो गया है. अच्छा, मैं उसमें फिर से बताता हूँ क्या लिखा था बेटा. Parameter. यस, पैरामीटर ऑफ मैटर इंक्लूडिंग प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, which decide, है ना, which decide its state, है ना, मैटर का स्टेट वो डिसाइड करने वाले थे. सो 1 by 1 हम लोग कुछ यूनिट्स लिख सकते थे जो तुम लोग को आना भी चाहिए यार. जैसा यू कैन से यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होने वाला है? सब मेंसुरेशन मीटर क्यूब. मीटर क्यूब. Meter So cube. you can say 1 meter cube will be nothing but 1000 liter. 1 liter, you know, 1 liter will be nothing but 1000 milliliter. It is 1 meter cube will be nothing but, you can simply say, it is 10,000, ऐसा बोल सकते थे हम लोग, डेसीमीटर क्यूब. And thus 1 liter is nothing but 1 decimeter cube. Similarly, 1 milliliter is, yes, क्या बेटा? 1 meter cube 10,000 है या 1,000? No, 1000 decimeter cube. So 1 liter will be same as 1 decimeter cube. 1 milliliter is same as 1 centimeter cube, or it may be written as cc, cubic centimeter. I hope ये सब यूनिट्स तुम लोगों को पहले से आते हैं. इन सब यूनिट्स का जरूरत पड़ने वाला है इस चैप्टर में. Yes, sir. Okay. Similarly, different units of volume, sorry, different units of temperature.
हम लोग टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स दे सकते थे बेटा। इसका एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर का? Kelvin. Kelvin. Kelvin, and we know the temperature in Kelvin is nothing but temperature in degrees Celsius plus 273.15. Yes, इतना ही होता है. Yes, sir. Yes, sir. And we have another temperature scale as degree Fahrenheit, which is 9 by 5 degrees Celsius plus हम लोग 32 लिख सकते हैं. So from here you can find out the relation between degree Fahrenheit and Kelvin also. अच्छा, एक जीके का बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता था, the temperature at which degree Fahrenheit and degree Celsius have same reading. -40. So they have same reading equal to, it is -40 degrees Celsius. Obviously यहाँ भी मैं x पुट कर दूं और यहाँ भी मैं x पुट कर दूं, और x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, so it comes out to be -40 degrees Celsius. I hope you should be aware about these units of volume, units of temperature. मैंने सिर्फ जस्ट रिवाइज कराया कि भाई चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर में यूज करेंगे इन सब के. लिखा बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक Yes, सेकंड, sir. एक सेकंड सर, एक सेकंड. एक मिनट, ये लो. हाँ सर. Now next is, you can say units of pressure. So how we define pressure in physics? It is technically force per unit volume. Sorry, Sir, area. force per unit area. Area. Force per unit area. It is, yes. So you can simply say it is force per unit cross-sectional area. So force per unit area. तो इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? So obviously, let's say it's SI unit, you can say it is Pascal, and Pascal is same as 1 Newton per meter square. So it is same as SI unit. We have one more common term related to pressure, is it is 1 atmosphere, and it is 1.01 into 10 to the power 5 Pascal, or simply you can say it is 101 किलो पास्कल हम लोग लिख सकते हैं, where kilo Pascal means 1000 Pascal. Here further you can say 1 atmosphere is 1.01 bar, and where 1 bar equal to 10 raised to the power 5 Pascal, or you can say it is 100 kilo Pascal. Yes, मुझे ऐसा लिखा है. Yes, sir. Sir, एक मिनट. We know another units as, जो नाम पहले भी सुना है तुम लोगों ने, it is 760 torr. It is after scientist Torricelli, which is nothing but 760 millimeter of Hg, same as 76 centimeter of mercury. वन बाई वन हम लोग ये सब टर्म समझ लेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग क्या है, एंड हाउ इट कम्स आउट टू बी, लेट्स से 760 torr और 760 millimeter of mercury.
सो ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता कितना है प्रिसाइजली, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग उसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर? इट इज, you can say it is pressure exerted by air column. It is pressure exerted by air column of atmosphere at sea level. For example, you just try to imagine this may be suppose Earth's surface, and on Earth's surface if you take cross sectional area of 1 meter square here, तो इसके ऊपर जो भी ये एयर या गैस के पार्टिकल है ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, या जो भी एयर या गैस के पार्टिकल है अबव दिस क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया, तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर, so simply you can say it is the pressure exerted by this atmosphere at sea level. This is known as, let's say, atmospheric pressure या 1 atmosphere. इस वजह ऐसी कुछ डेफिनेशन पढ़ी है तुम लोगों ने पहले भी? Yes, sir. Yes, sir. और ये सब ज्योग्राफी में ये सब भी पढ़ा रहेगा कि विद एल्टीट्यूड विद हाइट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? Decreases. Decreases. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस बेटा, ऑब्वियसली विद हाइट प्रेशर विल डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, डू यू थिंक उसके ऊपर मेरे पास रिलेटिवली कम एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना? Yes, sir. और कुछ इस टाइप का रिलेशन होता है जो फिजिक्स में बाद में डेरिवेशन भी करोगे तुम लोग, P इक्वल टू P नॉट E रेज टू द पावर माइनस mgh/RT होता है ना? सर एटमॉस्फेयर के बाजू में क्या लिखा? एटमॉस्फेयर एट एटमॉस्फेयर, Sea level. इट इज प्रेशर सी लेवल बेटा, है ना? इट इज प्रेशर एट सी लेवल. सर वो माइनस mgh/RT है. इट इज माइनस mgh/RT है. यस. So it is how pressure varies with height, let's say, है ना? यस बच्चे, आर ये सब क्या है हम लोग जल्दी ही समझ लेंगे इस चैप्टर में, बट इन जनरल लेट्स से यू कैन अंडरस्टैंड ऑन दिस एक्सेस. लेट्स, इस फार्मूले का इस चैप्टर में कहीं यूज नहीं है, इट इज जस्ट टू नो कि भाई लेट्स से ये प्रेशर है और ये हाइट है, सो प्रेशर हाइट के साथ कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, where this pressure is nothing but let's say P naught जब height 0 है ना, so with height pressure decreases exponentially. So with height pressure decreases. थोड़े इस फार्मूले को कुछ याद वो सब रखने की जरूरत नहीं है ना? बट ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यार मेजर कैसे किया होगा? मतलब डू यू थिंक ये पूरा मैंने एयर कॉलम का वेट फाइंड आउट किया होगा?
एटमॉस्फेयर का एंड देन वेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा कुछ किया होगा। यस बेटा, कैसे कैसे प्रेशर मेजर कैसे किया होगा? बैरोमीटर से। वेरी गुड, है ना। अच्छा, ये दिस प्रेशर इज एक्चुअली द ह्यूज प्रेशर। ये इतना प्रेशर है, कुछ वो कहानी सुनी होगी ना तुम लोगों ने, एक पागल राजा था जिसने लेट्स से ऐसा इस टाइप का एक बाउल लिया और विद द हेल्प ऑफ पंप उसके अंदर का प्रेशर कम कर दिया बाउल का, है ना, सच दैट यहां से मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर प्रेशर रिलेटिवली कम है। तो ये बाउल ओपन होगा क्या दोनों पार्ट इसके? नो नहीं मतलब फिर उसने क्या करा कि भाई यहां से ऐसा कुछ घोड़े इधर बांधे, कुछ घोड़े इधर बांधे और घोड़ों को खूब पीटा, है ना, तो फिर भी बाउल ओपन नहीं हुआ है ना। सो यू कैन से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज एक्चुअली द ह्यूज प्रेशर, है ना। नाउ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस नोन एज बैरोमीटर। जैसे बेटा ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें किसी को कुछ डाउट है? नो नो सर। नाउ सर। सो हाँ बोलो सर वो ग्राफ किसका था, मेरे को समझा नहीं। बेटा। वो ग्राफ था, इट इज प्रेशर, इट इज हाउ प्रेशर वेरीज विद हाइट, है ना, इट इज हाउ प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड। ओके सर। Sir, in that equation, so what is P naught? P naught you can say it is the pressure at sea level 1 atmosphere। मतलब H का वैल्यू 0 हो जाएगा बेटा इस फार्मूले में, तो P इक्वल टू P naught आ जाएगा ऑटोमेटिकली। Yes, sir. Okay, sir. You can say it is pressure at height equal to 0। सर वो फॉर्मूला नीचे कौन सा है सर? P इक्वल टू P naught E raised to the power mgh। इसका नाम बैरोमीटर फार्मूला है, फिजिक्स में उसका डेरिवेशन भी करोगे बेटा जब 11th के आखिरी में आओगे, है ना। अभी नहीं, एक फ्लूइड नाम का चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें डेरिवेशन भी है उसका। केमिस्ट्री के लिए भी उस फार्मूले को बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, तुम लोग को बस ये समझना है हाइट के साथ प्रेशर डिक्रीज होने वाला है और वो डिक्रीज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। So you can say atmospheric pressure can be measured by barometer। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय बैरोमीटर। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली बैरोमीटर हम लोग को यहाँ पढ़ना है एंड वी विल सी कि भी प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। Now before we start barometer, first we have to understand the Pascal rule। क्या होता है बेटा पास्कल रूल? क्या होता है, पढ़ा है कभी 9th 10th में तुम लोगों ने? सर पढ़ा है लेकिन पूरा पूरा याद नहीं है सर। थोड़ा फिर भी थोड़ा। थोड़ा बहुत आइडिया क्या था पास्कल रूल? अरे कि मतलब लिक्विड हाँ यस, अरे भूल गया मैं। लिक्विड तो है ऑब्वियसली। तो हाँ सर आप बताओ सर, याद नहीं आ रहा, भूल गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सो यू कैन से अकॉर्डिंग टू let's say Pascal rule, according to Pascal rule pressure, sorry yes, sorry pressure at different points, pressure at different points in pressure at different point at same level, at same level in given liquid is found to be same। मैं समझाता हूँ ये पास्कल रूल का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई सपोज मेरे पास कहीं ऐसा कोई लिक्विड फील्ड है यहाँ, तो डू यू थिंक ये दोनों सेम लेवल ही है क्या इस लिक्विड में, है ना?
कोई भी ऐसा लिक्विड फील्ड होता और अगर मैं इसको लिक्विड को यहां से पुश करने की कोशिश करूं, अगर मैं लिक्विड को यहां से पुश करने की कोशिश करूं, तो डू यू थिंक ये लिक्विड यहां फोर्स इधर लगाएगा? ऐसा होगा अगर लिक्विड को मैं इधर पुश करने की सर कोशिश लेकिन वो करूंगा? एक सिंगल बीकर ना, पाइप थोड़ी है। आपने पाइप सर वो हाँ सर, वो beaker बीच वाले बीकर को भी पुश कर सकता है ना सर? क्या 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 फिर से बोलो बेटा। सर आपने बीकर में रखा है कि ऐसे पाइप में रखा है? पाइप बेटा, लेट्स से यू ट्यूब है सपोज, एक है ना अच्छा बेटा, ये तो ये नहीं है, ये तो सेम लेवल बनाने के लिए है बस, मैंने है ना, ये बीच में कुछ नहीं है ना यहाँ। हाँ सर समझ गया। ये तुमने सेम लेवल ड्रॉ करने के लिए वैसा बनाया था लाइन, है ना। हाँ। तो अगर मैं इसको यहां से पुश करूंगा तो वो ऊपर उठ जाएगा, वहां से लिक्विड, है ना। एंड देन यू नो, सपोज ये किसका फंडा होता था, ऐसा कुछ पढ़ा तुम लोग, हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना। यस हाँ सर, याद आ गया सर। स्मॉलर फोर्स। यस, यहाँ मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए होता, और यहाँ ये बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ ये फोर्स F1 होता, ये फोर्स F2 होता। सो दोनों जगह प्रेशर शुड बी आइडेंटिकल। इट मींस F1 डिवाइडेड बाई A शुड बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई कैपिटल A। ऐसा सब पढ़ा है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना, हाइड्रोलिक में। तो यही था ये पास्कल रूल, है ना। पास्कल रूल मींस एक ही लेवल पे, लेट्स से मैं ये वाला लेवल ड्रॉ कर देता हूं लिक्विड के लिए, इसमें एक ही लेवल पे 2 पॉइंट्स या 2 से ज्यादा पॉइंट है एक ही लिक्विड में, तो वहां प्रेशर सेम रहने वाला है। अच्छा, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। ये अलग है कि एक में फोर्स नीचे लगाना पड़ेगा, दूसरे में फोर्स ऊपर लगेगा, है ना। बट प्रेशर तो दोनों जगह सेम ही है ना, नहीं? हाँ सर है। सो दोनों जगह प्रेशर का वैल्यू सेम रहने वाला। तो ये पास्कल रूल थोड़ा याद आ गया। हाँ सर। अब देखो ये बैरोमीटर क्या था, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इन बैरोमीटर, सपोज इफ यू फिल मरकरी इन दिस ट्यूब, हम लोग ये भी समझ लेंगे कि मरकरी क्यों लिया, बट सपोज इफ यू फिल मरकरी इन दिस टब, एंड एक मैंने ट्यूब लिया जो एक साइड से क्लोज्ड था, फिल्ड विद मरकरी ना। लेट्स से सपोज ये पहले पूरा का पूरा मरकरी से फिल्ड था, है ना। सपोज ये पूरा का पूरा अगर मरकरी से फिल्ड था, मींस डू यू थिंक इसके अंदर कोई एयर नहीं होने वाला है स्टार्टिंग में ना। सपोज मैंने पूरा का पूरा इसको मरकरी से फिल कर दिया था, और फिर इस मरकरी वाले टब में उसको इन्वर्टेड रख दिया, है ना। सर वो क्या है सर? वो टेस्ट ट्यूब है? हाँ, मतलब टेस्ट ट्यूब जैसा समझ सकता है, मतलब टेस्ट ट्यूब से भी थिन, मतलब कैपिलरी टाइप समझ सकता है। अच्छा। तो पहले मैंने उसको पूरा मरकरी से फिल किया होगा, और फिर मैंने उसको इसमें इन्वर्ट कर दिया है मरकरी कॉलम में, है ना। तो यहाँ पूरा का पूरा मरकरी नीचे नहीं गिरता, सपोज इस हाइट तक इसमें मरकरी बच जाता। नाउ सपोज अगेन, लेट्स से दिस मे बी पॉइंट A and this may be suppose point B in mercury. Do you think point A and point B पे pressure should be same? Yes, sir. अच्छा, बाहर जो प्रेशर लगने वाला है, can we say it is atmospheric pressure as 1 atmosphere at sea level? एयर प्रेशर लगाएगा ना मरकरी पे। क्या सर, क्या बोला आपने? वापस बोल सकते? अगर ये ओपन टब है, ओपन पॉइंट है लेट्स से, या ओपन लेवल है मरकरी का, तो डू यू थिंक उस पे ऊपर वाला जो एयर है वो प्रेशर लगाएगा? हाँ सर लगाएगा, है ना। यहाँ भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यहाँ भी 1 एटमॉस्फेरिक, यहाँ भी 1 एटमॉस्फेरिक, है ना। हाँ। तो डू यू थिंक पॉइंट बी पे भी टेक्निकली प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। हाँ, क्योंकि पास्कल्स लॉ के हिसाब से, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा चलो जल्दी से मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट बी है उस पे एयर प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है?
नहीं सर एयर नहीं ये लगा तो रहा। नहीं लगा रहा है ये तो अभी ओपन बचा ही नहीं एटमॉस्फेयर के लिए, है ना। Yes. अच्छा, ये जो हाइट है, दिस हाइट इज फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली 76 सेंटीमीटर, है ना। दिस हाइट इज फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली 76 सेंटीमीटर correspond to 1 atmosphere pressure. तो कैन वी से 1 atmosphere pressure exactly उतना ही प्रेशर होता है जितना 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम अप्लाई करता होगा। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट ए का जो प्रेशर है एंड पॉइंट बी का जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए ना। Yes. हाँ सर। रिपीटिंग हियर, पॉइंट ए का प्रेशर एंड पॉइंट बी का प्रेशर शुड बी सेम। पॉइंट Yes, ए sir. का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर एंड पॉइंट बी का प्रेशर है, यू कैन से इट इज प्रेशर exerted by mercury column, pressure exerted by mercury column of 76 centimeter height. यस, ऐसा लिख सकते थे हम लोग। वाई, अश्विनी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा है भाई, वाई इज द एरो पॉइंट इज नॉट टेकन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। यस बेटा, बॉटम ऑफ द ट्यूब मीन्स कहीं यहां, ऐसा। अश्विनी क्या बोलना चाहता है बच्चे? सर मतलब मैं ये पूछ रही थी कि आपने लिक्विड लेवल से एरो पॉइंट शुरू किया ना, तो मुझे लगा कि वो टेस्ट ट्यूब के पूरे रेंज को 76 पकड़ेंगे, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं बेटा, जितना ये लेवल से बाहर है उतना 76 है ना। अच्छा तो पूरा, अच्छा ओके, हाँ वही डाउट था, थैंक यू सर। हाँ, जितना उस लिक्विड से बाहर है वो ट्यूब, है ना। मरकरी जितना उस लिक्विड से बाहर है। अच्छा, अब ये प्रेशर देखो हम लोग मेजर भी कर सकते थे। बेटे, लेफ्ट वाला पार्ट लिख लिया तुम लोगों ने नोट्स में कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पास्कल लो, है ना। ठीक है, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ हम लोग इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं कि ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम लोग, ये तो पता चल गया कि इट इज इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, बट ये प्रेशर भी हम लोग एग्जैक्टली फाइंड आउट कैसे करेंगे। हियर यू कैन सिंपली अज्यूम let's say the cross sectional area of the tube, this cross sectional area is suppose A, है ना। ये area है cross sectional area, so can we say pressure at point B should be equal to weight of mercury column divided by cross sectional area A। बेटा वेट ही तो होगा, फोर्स यहाँ है ना। वेट ऑफ मरकरी कॉलम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। कितना वेट है मरकरी कॉलम का? इट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डू यू थिंक अगर मैं ये हाइट को सपोज h ले लूं तो वॉल्यूम हो जाता h मल्टीप्लाइड बाय a। सिलेंडर का वॉल्यूम ऐसे ही होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। Yes, sir. Yes, sir. तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। डू यू थिंक ये वेट हो जाता? Yes, sir. एंड वेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इन विच एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया विल कैंसल्ड आउट और ये आ जाता हाइट ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी multiplied by height of mercury column multiplied by g। यस बच्चे, ऐसा आ सकता था। सर आप Yes, ये sir. वापस समझा सकते हो सर एक बार क्लियर? देखो मैं फिर से बोलता हूँ, प्रेशर एट पॉइंट बी शुड बी नथिंग बट द वेट ऑफ मरकरी कॉलम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेट ही है ना, फोर्स उसका, जो मरकरी कॉलम फोर्स लगाएगा। हाँ सर। मरकरी है। वेट को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लिया? पहले मास फाइंड आउट कर लिया और मास को एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ सर। है ना, तो ये हो जाता रो एंड देन इट इज वॉल्यूम इनटू जी डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये रो जी एच आ जाता, प्रेशर है ना।
ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब है। हाइट कितना हो जाता? 0.76 मीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बच्चे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? Since everything we have put in SI unit, so do you think मेरे पास जो आंसर आएगा it has to be in पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? Yes, sir. ये सब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. It is pressure at point B in the unit of Pascal. तो डू यू थिंक प्रेशर एट पॉइंट ए पे भी इतना ही प्रेशर हो जाता? Yes, sir. Yes, sir. सो इट इज हाउ वी नो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का वैल्यू कितना है। एंड फ्रॉम हियर वी कम टू नो कि 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। ये तुम लोगों ने अब जब थोड़ा थोड़ा ये सब पढ़ लिया है ना बेटा, फिजिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम और समथिंग लाइक दिस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर कैसे मेजर करते होंगे? Yes, sir. Okay. और वो भी अब समझ में आ गया कि ये 1 एटमॉस्फेयर का मीनिंग 760 mm ऑफ Hg, क्या क्या फिजिकल मीनिंग क्या है उसका, है ना? Yes, sir. तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर होता है जितना 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम अप्लाई करता है प्रेशर। सर मर्क्यूरी क्यों लिया? हाँ, मरकरी क्यों लिया? देखो अभी एक क्वेश्चन कर लेंगे, उससे शायद तुम्हारा जवाब मिलेगा उसका। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है मरकरी ही क्यों लिया? सर उसका डेंसिटी बहुत हाई है। हाँ, तो फिर वो मतलब यूनिफॉर्मली उसका रेट चेंज होता है प्रेशर के रेट ऑफ चेंज से। ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली तो बड़ा बात उसका हाई नॉन स्टिकी है। वो अच्छा, नॉन स्टिकी है। चलो वो अच्छी बात है। ओपेक है। सर उसका हाइट इतना बढ़ता नहीं था प्रेशर की वजह से। और हाइट इतना नहीं बढ़ता। वेरी गुड, है ना? देखो बहुत सारे बच्चों को काफी काफी चीजें पता है। प्रेशर के लिए भी बढ़ जाता है। यस, तो अगर इतना सब चीज तुम लोग बोर्ड में लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को। यस, है ना? ऐसी यस, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल समझाता हूँ क्यों लिया हम लोगों ने लेट्स से मरकरी कॉलम। ये लिख लिया है इतना कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इट इज 1.01। Yes, sir. एक मिनट सर, एक मिनट। Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मरकरी ही क्यों लिया होगा हम लोगों ने। मैं समझाता हूँ, देखो, है ना? सो पॉइंट इज लेट्स से instead of mercury, if water is used, instead of mercury, if water is used, can we say 1 atmosphere should be equal to, मैं ऐसा लिख देते हैं, rho of mercury, height of mercury into g and multiplied by density of water into height of water into g. Do you think ये वाला फार्मूला तो बेटा अगर वाटर लिक्विड होता उसके लिए भी बन जाता ना ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें g and g तो देखो कैंसल्ड आउट हो गया यहाँ से। So from here you can say height of water column should be equal to density of mercury था 13.6 into 1000
उसमें हाइट था 0.76 मीटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से अगर हम लोग फाइंड आउट करते तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम अप्रोक्सीमेटली 10.3 मीटर आ जाता। तो कहने के लिए हम लोग ये भी बोल सकते थे कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। लेकिन इतना बड़ा पैरामीटर कन्वीनियंट नहीं होगा यूज करने के लिए। इसलिए तो बड़ा, यही तो रीजन है कि हम लोग मरकरी ले रहे हैं। अदरवाइज हम लोग को प्रेशर मेजर करने के लिए 10.3 मीटर का हाइट पाइप साथ में लेकर घूमना पड़ता है ना, नहीं? और 10.3 मीटर ठीक ठाक हाइट है यार। हाँ बोलो। हाँ सर, पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल नहीं है, वेरी गुड सर। और वाटर स्टिक भी होता है, और वाटर स्टिक होने की टेंडेंसी भी रहती। तो मरकरी का अगर मैं काफी थिन ट्यूब भी लूंगा तो भी मेरा काम चल जाता। ऐसे में अगर वाटर का बहुत थिन ट्यूब लेना पड़ता तो वो जो वाटर राइज है, मतलब वो डिप एंड राइज है, वो उतना आसानी से नहीं होता क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब से या कैपिलरी के इंटरनल वॉल पे स्टिक कर जाता। सर लेकिन जो हाइट है वो टेस्ट ट्यूब के थिकनेस पे भी डिपेंड करता है ना, अगर ज्यादा मोटा हुआ तो नहीं बेटा, देखो यही तो हो रहा है। देखो अगर मैं ये फार्मूले में देखेगा तो फार्मूले में कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया बच रहा है यहाँ? नहीं बच रहा। तो फिर यूनिफॉर्मली वही लेवल रहना चाहिए। हाँ, तो मैं कितना भी हाइट, मतलब कितना भी थिक या थिन ट्यूब ले लूं, ये हाइट का वैल्यू सेम ही होगा। अच्छा, मतलब लेकिन उसके अंदर लेकिन ज्यादा लिक्विड आ जाएगा ना, मतलब हाँ, मतलब तो वेस्ट ऑफ लिक्विड होगा ना। अगर सपोज वही बोलना चाहता हूँ। बैरोमीटर बनाना है तो बहुत थिन ले लूं ना, जिससे मुझे काम चल जाए मेरा, बस है ना। हाँ सर, वही कहना चाह रहा हूँ। यस बच्चे, लिखा है ऐसा कि इंस्टेड ऑफ मरकरी अगर हम लोग ने वाटर लिया होता तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट 10.3 मीटर होता। यस बच्चे, क्लियर है? यस सर। ठीक है, और लिख भी लिया है अच्छे से? यस हाँ सर। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। फाइंड आउट atmospheric pressure as measured by following barometers. Find out atmospheric pressure as measured by following barometers. Let's say first ग्राफ या फर्स्ट लेट्स से डायग्राम सपोज इस टाइप का है। यहाँ मरकरी फील्ड है, यहाँ लेट्स से ट्यूब, यहाँ तक लेट्स से सपोज मरकरी फील्ड है, ऐसा डायग्राम में दिया हुआ है। एंड सपोज इट इज 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का राइज। आई होप ये तो बहुत चिंदी टाइप सा है, ये तो तुम लोग को बताना ही चाहिए था मुझे आंसर इसका। सिमिलरली यहाँ फिर से मैंने कुछ मरकरी ले लिया एंड देन इट विल बी दिस इन्वर्टेड कॉलम हेयर। यहाँ फिर से ये मरकरी फील्ड है एंड दिस मरकरी फील्ड इज सपोज 55 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी फील्ड है। और यहाँ अब कुछ गैस या एयर भी ट्रैप्ड था, है ना। तो यू कैन से फर्स्ट वाले केस में अगर कुछ एयर नहीं दिया था तो मरकरी कॉलम के ऊपर क्या होगा, वहां वैक्यूम रहेगा। लेट्स से इस वाले केस में मैंने मेंशन्ड है और यहाँ ये मेंशन है कि ये जो गैस का प्रेशर है यहाँ इट इज इक्विवेलेंट टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सिमिलरली लेट्स से थर्ड ग्राफ या थर्ड डायग्राम इज
यहाँ सपोज ये फिर से कुछ मरकरी फील्ड है एंड इन दिस ट्यूब यहां तक लेट्स से ये कुछ ऐसा मरकरी है ऑफ हाइट इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और इस मरकरी के ऊपर अब और दूसरा लिक्विड भी एक फील्ड है ऑफ हाइट इक्वल टू लेट्स से 30 सेंटीमीटर and here density of this liquid equal to 6.8 grams per cubic centimeter. अच्छा, फर्स्ट 3 एग्जांपल्स हैं, हम लोग और एग्जांपल भी सीखेंगे अभी, बट पहले 3 के लिए बताना तुम लोग, इन फर्स्ट 3 के लिए है ना। तो फर्स्ट का 0.93 into 10 to the power 5। हाँ, मतलब तुम लोग मुझे जरूरी नहीं है एटमॉस्फेयर में बताओ, तुम मुझे सिंपली लेट्स से सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में भी आंसर बता सकते हो, जहां लाइफ बड़ी आसान है। इसका फर्स्ट का आंसर क्या है यहाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज नथिंग बट 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, है ना। तो ये आंसर है, कोई टेंशन नहीं। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द 4 यूनिट्स, अगर इसको बाकी यूनिट्स का कन्वर्जन करना पड़ता तो भी कर लेंगे हम लोग, है ना। हाँ, तो फर्स्ट का आंसर लेट्स से 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। सेकंड का आंसर 75 सेंटीमीटर। 75, तो ऐसा हम लोग समझ सकते थे यार। डू यू थिंक गैस प्रेशर लिक्विड के ऊपर अप्लाई करेगा ना? हाँ। अच्छा, तो अगर मैं यहां अगर वेट देखने की कोशिश करूंगा तो डू यू थिंक इट इज इक्विवेलेंट टू 55 + 20, है ना? हाँ सर। तो यहाँ प्रेशर का वैल्यू मेरे पास आ जाता 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कोई टेंशन नहीं भाई। थर्ड का आंसर अच्छा, ये जो 55 वेरी गुड। हाँ सर, 55। अच्छा, 55 क्यों है? इसका जो डेंसिटी है लिक्विड का वो मरकरी की डेंसिटी का एग्जैक्टली हाफ है। ये जो लिक्विड का डेंसिटी गिवन है वो मरकरी की डेंसिटी का एग्जैक्टली हाफ है। मैं कुछ ऐसा देखो लिखने की कोशिश कर सकते थे। कैन वी से यहां जो प्रेशर का वैल्यू है इट इज 40 + 30 times of density of liquid divided by density of mercury, ऐसा लिख सकते थे क्या हम लोग? बेटा हम लोगों को वो वाला हाइट देखना है ना मरकरी कॉलम का जिसका वेट इस लिक्विड के वेट के इक्वल होगा। यस सर। ना जिसका वेट इस लिक्विड के वेट के इक्वल होगा उतना मरकरी का हाइट हम लोग को देखना था ना। तो कैन वी से अगर ये 30 सेंटीमीटर हाइट है इस लिक्विड का, मरकरी का अगर सिर्फ 15 सेंटीमीटर भी होता जिसका डेंसिटी इसके लिक्विड की डेंसिटी का डबल है तो सेम वेट या सेम मास होता उसका। यस सर। फ्रॉम हेयर इट इज नथिंग बट 40 + 30, ये आ जाता 1/2 एंड कम्स आउट टू बी 55 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यस बच्चे, क्लियर है? सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। अच्छा, मैं लास्ट वाला देखो मैं फिर से बताता हूँ बेटा। हम लोग को बस करना क्या था कि ये जो लिक्विड का जितना मास है ना, इस लिक्विड का जितना मास है बस इसके इक्विवेलेंट मैं मरकरी का मास ले लूं यहाँ। बेटा ये जो लिक्विड का मास है जो 30 सेंटीमीटर है इसके इक्विवेलेंट बस मैं मरकरी का मास ले लूं ना बस इसमें, है ना। तो अगर इसका डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी का आधा है तो डू यू थिंक अगर मरकरी का मेरे पास जो हाइट कॉलम है वो 15 सेंटीमीटर भी होता तो भी वेट इक्विवेलेंट हो जाता? या देखो इसको ऐसा रिलेट कर लो। चलो, डू यू थिंक प्रेशर का फार्मूला कहीं हम लोग ने ऐसा लिखा था क्या?
रो जी इंटू एच? कहीं आया था ऐसा? रो एच जी आ गया था, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस सर। पहले वाले पेज पे था वैसा, है ना? यस सर। तो कैन वी से इट विल बी नथिंग बट डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड multiplied by height of this liquid। अब मैं प्रेशर वाला टर्म हटा दूं, चाहे तो मैं जी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, लेट्स से दोनों जगह, है ना? सो शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू हाइट ऑफ मर्करी, ऐसा लिख सकते थे हम लोग। यस सर। तो बस अगर मेरे पास इस लिक्विड का डेंसिटी आधा है मर्करी की डेंसिटी का, तो मर्करी का हाइट आधा हो जाएगा। Yes, are you getting my point? Yes sir। Okay। ये लिखा है इतना तुम लोगों ने? सर एक Yes, सर sir। नहीं सर। अरे तीनों एग्जाम्पल समझे तुम लोगों की? नहीं समझे सर। यस सर समझे। वेरी गुड। मैं और 3 एग्जाम्पल देता हूं, उसको जल्दी से मेरे लिए करके दिखा दो। लेट्स से इट इज, फोर्थ एग्जाम्पल इज, सपोज लेट्स से दिस इज मर्करी टब अगेन, और अब यहाँ ये जो बैरोमीटर है वो वर्टिकली नहीं है, किसी एंगल पे स्लाइटली टिल्टेड है, एंड लेट्स से दिस एंगल इज नाउ 30 डिग्री, और इसमें ऑब्वियसली मर्करी मेरे पास फील्ड है अप टू दिस हाइट, एंड ये जो हाइट है लेट्स से इट इज गिवन एज 90 सेंटीमीटर। तो अभी ये वर्टिकली नहीं है, लेट्स से स्लाइटली टिल्टेड था, है ना? सिमिलरली मैं फिर देखो इसको ऐसा भी कर सकता था। सपोज अब ये मेरे पास ट्यूब ऐसा है, मस्त देखो, है ना? यहां तक लेट्स से ये लिक्विड भरा हुआ है मेरे पास, ये एंगल लेट्स से फिर से मैं 30 डिग्री ले लूं। ये फिफ्थ पार्ट है ना? हाँ ये फिफ्थ पार्ट है। लेट्स से यहाँ भी मेरे पास मर्करी है, यहाँ भी ये मर्करी ही था, यहां से लेकर यहां तक सपोज ये 80 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक लेट्स से ये 20 सेंटीमीटर है। वन मोर पार्ट रिलेटेड टू दिस, सपोज यहां मर्करी फील्ड है, यहां लेट्स से मेरे पास कोई गैस है, यहां मर्करी है, या मैं ऐसा लिखता हूं,
यहाँ लेट्स से मरकरी है, यहाँ मेरे पास कोई गैस फील्ड है, फिर मरकरी है, और फिर मेरे पास कोई गैस फील्ड। लेट्स से ये जो हाइट दिया हुआ है मरकरी का, इट इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ ये जो बीच में गैस भरा हुआ है ये 20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ ये जो मरकरी लिक्विड है इट इज 30 सेंटीमीटर। फिर ये जो गिवन है लेट्स से इट इज 40 सेंटीमीटर। और जो सबसे ऊपर वाला गैस है उसका प्रेशर दिया हुआ है, इट इज इक्विवेलेंट टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इट इज इक्विवेलेंट टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। जो सबसे ऊपर वाली गैस है उसका प्रेशर गिवन है। सो ये लेट्स से 6th पार्ट ऑफ बैरोमीटर। यस बेटा, पहले 4th का मुझे आंसर बताओ। 4th का आंसर कितना है? 45। 45, वेरी गुड। अच्छा, ये शायद इतना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा थोड़ा तुम लोग पढ़ रहे होंगे यार। क्या पढ़ रहे थे कि भाई यहाँ है ना, ये जो मेरे पास वेट है वो तो लगने वाला था ऐसा डाउनवर्ड। यस, डू यू थिंक इस मरकरी वाले लेयर पे ये जो वेट है उसका ये वाला कंपोनेंट लगेगा क्या? फोर्स इस पे है ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा अगर नीचे वाला 30 था तो? 60। ये एंगल हो जाता 60 डिग्री। तो डू यू थिंक जो वेट का cos 60 वाला कंपोनेंट है बस वही अप्लाई होने वाला है? डू यू थिंक ये जो वेट का cos 60 वाला कंपोनेंट है बस वही अप्लाई होने वाला है? Yes, तो sir. यहाँ से मेरे पास प्रेशर का जो वैल्यू है वो आ सकता था लेट्स से 90 cos 60 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या मैं लिख सकता था इसको 90 sin 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी comes out to be 45 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इस बच्चे क्लियर है फर्स्ट वाला? ये तुम लोग कर रहे होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, यही सब तो था कि स्लैंटिंग हाइट उस मतलब वेट का साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाता था डायरेक्शन में, है नहीं? हाँ सर। चलो मुझे ऐसा, ये दूसरे का आंसर बताओ तुम लोग। 60 है ना 60। तो जो जितना स्लैंटिंग पे है उसका बस साइन 30 वाला कंपोनेंट ले लेंगे, और जो सीधा सीधा वेट है वो सीधा सीधा 20 ले लेंगे हम लोग वहां। तो इसका मेरे पास आंसर आ जाता P इक्वल टू लेट्स से 80 sin 30 plus 20, so it comes out to be 60 centimeter of mercury. It is 60 centimeter of mercury. ऐसा 6th वाले केस में 75। 75 तो कंफर्म नहीं है। तो गलत भी है ना तुम्हारा। यस 6 का आंसर So 75 centimeter of Hg. नहीं, 25 75 आंसर नहीं है। प्रन्या नहीं बच्चे, 90 आंसर नहीं है। 75 ही आ रहा है। हाँ 70 सर। अच्छा चलो 75 कैसे आएगा मुझे बताना है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये जो प्रेशर है गैस का वो है 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, है ना।
तो डू यू थिंक ये जो गैस प्रेशर अप्लाई करेगा इस ऊपर वाले मरकरी के ऊपर, वो कितना अप्लाई करेगा? 10 है ना? 10 सेंटीमीटर केजी 10 सेंटीमीटर अप्लाई करेगा ना? अच्छा, सर अब ये जो पूरा मरकरी है वो इस गैस पे कितना प्रेशर अप्लाई करेगा? 30 30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर 40। अच्छा, अब मुझे ये बताओ यार, ये जो बीच वाला गैस फंसा है इसमें, ये जो बीच वाला गैस फंसा है इसमें, ये इस पर ऊपर से कितना प्रेशर लगने वाला है? यहाँ से 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। वेरी गुड। गैस का ये जो छोटा कॉलम है इसका कोई वेट होगा क्या? नहीं। अच्छा भाई, इस कॉलम का तो वेट नहीं होगा ना, जो गैस का मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, है ना? अच्छा, ये जो गैस है ये ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा? ये जो गैस है यहाँ कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा इस मरकरी कॉलम पे ऊपर? यहाँ ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा ये? 40। तो ही तो बैलेंस है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग बोल सकते हैं उसको, है ना? अच्छा, गैस हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर ही अप्लाई करता है क्या? जैसा सपोज जिस रूम में तुम लोग बैठे होंगे अभी, रूम में जो लेफ्ट वाली वॉल है उस पे भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, जो राइट वाली वॉल है उस पे भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। डू यू थिंक जो तुम्हारी सीलिंग है उस पे भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है गैस का? नो सर। हाँ भाई, यस सर। रूम में बेटा गैस हर एक डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर अप्लाई करता है। हाँ। अच्छा, तो ये गैस नीचे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा? 40 तो 10 लेंगे ना? नहीं 40 लेंगे। तो अब यहां से इस पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है? 40। तो डू यू थिंक यहाँ एकदम नीचे वाले लेवल पे कितना प्रेशर होगा? 70 प्लस 70 हाँ तो 70। यहाँ से प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और यहाँ तुम लोग चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते थे क्या? गैस विल अप्लाई इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सर आप एक बार लास्ट वाला बता सकते हो सर? लास्ट सर वाला एक बार फिर से बता दो। लास्ट वाले केस में इतना इमेजिन कर लो, या एक सिंपल रखने के लिए इतना समझ लो कि गैस जो प्रेशर है वो अपने वेट की वजह से अप्लाई नहीं करता है। गैस जो प्रेशर अप्लाई करता है इट इज ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मेरे पास एक छोटा सा कंटेनर में गैस है तो गैस अपने वेट की वजह से प्रेशर अप्लाई नहीं करता है ना? जैसा सपोज यू कैन इमेजिन जो एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर गैस है उसमें प्रेशर उसके वेट की वजह से होता है क्या? गैस के वेट की वजह से नहीं, मोशन की वजह से। हाँ, तो उसके मोशन की वजह से होता है ना? और वो मोशन हर एक डायरेक्शन में गैस का प्रैक्टिकली इक्वल ही होता है। तो गैस किसी भी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर ही अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर वाला गैस है सबसे, इसमें 10 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर था, तो वो ऊपर वाले वॉल पे भी उतना ही प्रेशर लगा रहा होगा और नीचे मरकरी लेवल पे भी 10 सेंटीमीटर ही प्रेशर अप्लाई कर रहा था। इरेस्पेक्टिव उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर दिया होता, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना? हाँ। ऐसा ही जो मिडिल वाला जो एयर या गैस ट्रैप्ड है उस पे अगर ऊपर से मरकरी 40 सेंटीमीटर अप्लाई कर रहा था तो वो ऊपर वाले मरकरी को बैलेंस करने के लिए 40 सेंटीमीटर लगा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना? तो जो मिडिल वाला एयर है वो हर एक डायरेक्शन में 40 सेंटीमीटर ही प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जो सबसे नीचे वाला जो मरकरी है उस पर ऊपर से लग रहा है 40 एज ए प्रेशर, 30 वो और अपने वेट की जगह वजह से लगा सकता है, तो सब मिला के 40 + 30 70 हो जाता है। यस भाई, थोड़ा तो हो गया होगा। गॉट इट सर। ओके, बहुत अच्छे बच्चों, चलो। हाँ सर।
सर लेकिन वो ऐसा सेटअप कैसे हो सकता है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा ना? नहीं बेटा, प्रेशर भी खेल होता है, ऐसा ना बोलो यार। जैसा एरोप्लेन का डेंसिटी ज्यादा होता है कि एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है? एरोप्लेन का फिर भी उड़ता है। हाँ सर। प्रेशर का खेल है बेटा सब, है ना? ओके सर। हाँ। एक तो एरोप्लेन गिर गया ना, मैंने सुना है। हाँ सर, कल ही हाँ सर, क्रैश हो गया। 2 टुकड़े, कैलीकट 3 2 या 3 पता नहीं। वही से आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, है ना बेटा। ये लिखा है तुम लोगों ने, ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है? 2 मिनट 2 मिनट। और ये तीनों एग्जाम्पल समझ में भी आ गए तुम लोगों को? यस सर। गुड, वेरी गुड। डन सर। सर 1 मिनट लास्ट। अमन अग्रवाल क्या करेगा अमोनियम नाइट्रेट का? तो सर अभी वो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था ना हाँ, सर, इतना बड़ा, तो explosion जानना था कि ऐसा क्यों होता है उसमें, ऐसा क्या होता है उसमें। अमोनियम एक नाइट्रेट का तो डिकम्पोजिशन हो जाता है बेटा, वो फास्ट डिकम्पोजिशन होता है, लाफिंग गैस N2O + H2 में बन जाता है। लाफिंग गैस सो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। पूरा शहर तबाह हो गया। उसकी वजह से गैस रिलीज होता है, और गैस इतनी तेजी से रिलीज होता है कि जब प्रेशर होता है गैस का तो उससे फट जाएगा चीज, है ना? हिरोशिमा नागासाकी के बाद वही अरे उन्होंने उसको अच्छे से सर स्टोर किया ही नहीं वो था। समथिंग चाइना में कुछ टीसे को तो एक जगह था, उधर हुआ था। अरे उधर चाइना और अमेरिका में जब भी हुआ था तो उन्होंने अच्छी जगह पे स्टोर कर रखा था। तेजवान में तो भी हुआ था एक। अमेरिका में भी हुआ था। चलो पहले ये लिखा है भी तुम लोगों ने ऐसा? 1 सेकंड सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट इज, अच्छा ये तो था यार मैनोमीटर, सॉरी बैरोमीटर। कुछ मैनोमीटर भी होता है ना, हम लोग समझ लेते हैं उसको भी, मैनोमीटर क्या होता है। Yes, sir. Okay, very good. So next is, let's say you can say मैनोमीटर। एक और मिलता जुलता डिवाइस है मैनोमीटर। So the manometer is, let's say, to measure pressure, to measure pressure of gas, है ना? अगर कोई गैस सिलेंडर है और उसका प्रेशर अगर मुझे मेजर करना है, so to measure pressure of gas we used manometer. So point is, suppose this may be any of the gas cylinder, कोई भी लेट्स से ऐसा एक गैस सिलेंडर है which has certain gas filled inside this cylinder. और सपोज भाई बैरोमीटर से हम लोग क्या कर सकते थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते थे। नाउ सपोज अगर यहाँ ये जो गैस है इसका प्रेशर कितना है, अगर वो मेजर करना है तो इसमें लोग करते क्या है कि ऐसा एक छोटा सा होल करके इसमें ऐसा एक यू ट्यूब डाल देते हैं उस होल में, है ना? ऐसा कुछ एक यू ट्यूब हम लोग डाल सकते थे जिसमें मरकरी को फिल कर देते। सपोज यहां से हम लोग मरकरी फील्ड है इसमें, ये मरकरी है।
यहां सपोज लेट्स से पॉइंट ए है और सपोज यहां पॉइंट मेरे पास बी है। ये जो डिफरेंस है वो सपोज h सेंटीमीटर का डिफरेंस है मरकरी के हाइट में, दोनों यूट्यूब के दोनों पार्ट में लेट्स से h सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ according to let's say Pascal rule, a pressure at point A and pressure at point B should be equal? Yes sir. अच्छा, बट प्रेशर पॉइंट ए पे कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है? गैस है ना? Yes. So you can say it is nothing but let's say pressure of gas and should be equal to the pressure B पे कौन प्रेशर पॉइंट B पे कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है? Do you think it should be, since यहाँ से ओपन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये P नॉट प्लस H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी? Yes sir. तो अगर मुझे H का वैल्यू पता हो, P नॉट का वैल्यू तो ऑलरेडी पता होता है 76 सेंटीमीटर होता है ना, तो मैं 76 प्लस H की वैल्यू को ऐड करके प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। तो ये जो सेटअप है, दिस टाइप ऑफ सेटअप इज नोन एज मैनोमीटर ट्यूब, जिससे मैं गैस का प्रेशर फाइंड आउट कर सकता था। वैसे कई बार ये क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि भाई ये ट्यूब यहां से क्लोज्ड हो, है ना, ऐसा भी हो सकता था। तब यहां मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाता? प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, है ना। सर इधर P0 क्या है? बट P नोट लेट्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, है ना। अगर वो वहां से ओपन था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लगेगा बेटा उसमें। क्लोज कर देंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा। अच्छा, मैनोमीटर एंड बैरोमीटर में बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है बेटा, दोनों में ही मरकरी यूज्ड होने वाला है। बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे थे और मैनोमीटर से हम लोग किसी गैस सिलेंडर की गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। यस? अच्छा, मेरे लिए क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ यार। यहां सपोज इस सिलेंडर में मेरे पास कोई गैस ए फिल्ड है, यहां सपोज मेरे पास कोई गैस बी फिल्ड है, यहां से एक मैनोमीटर ट्यूब इसमें डाला हुआ है ऐसा, और यहां भी एक मैनोमीटर ट्यूब है which is open to atmosphere, है ना, which is open to atmosphere। यहां जो मरकरी का डिफरेंस है, यहाँ जो मरकरी का डिफरेंस है वो लेट्स से सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ ये मरकरी फील्ड है ऐसा, और यहां मरकरी फील्ड है सपोज ऐसा। ये जो डिफरेंस है हाइट में, ये जो डिफरेंस है यहां, इट इज गिवन एज 38 सेंटीमीटर, और यहां ये जो डिफरेंस है इट इज गिवन एज 76 सेंटीमीटर। यहां से जो प्रेशर है let's say it is 1 atmosphere. So can you suggest me pressure of gas A and pressure of gas B in the unit of atmosphere?
pressure of gas A and pressure of gas B in the units of atmosphere. Yes, Dramil, गैस B का प्रेशर तो तुम्हारा सही है आंसर. You have to find out the pressure of gas A and pressure of gas B. यशोवर्धन, नहीं बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं था. गैस बी का प्रेशर 0 कैसे आएगा भाई? यस, पहले गैस बी का प्रेशर कितना आएगा? गैस बी तो आसान है. गैस बी का प्रेशर शुड बी 2 एटमॉस्फेयर, है ना? 2, हाँ. 1 एटमॉस्फेयर प्लस 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के कॉलम के इक्वल. यस अस्मी, है ना? वैसे ही होना चाहिए बेटा. पी नोट प्लस 76 और पी नोट का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है. गैस ए का प्रेशर कितना होगा? गैस ए का प्रेशर कितना होगा? MMHg में आ गया. बेटा एमएम ऑफ एच जी को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो तो सबसे आसान है. 1.5 एटमॉस्फेयर. यस सर, 1.5. ये तो पक्का है ना. गैस बी का प्रेशर गैस ए से ज्यादा है. गैस बी ने मरकरी को ज्यादा नीचे पुश कर दिया है ना ए के कंपैरिजन में. और कितना डिफरेंस होना चाहिए? हाफ एटमॉस्फेयर का डिफरेंस है ना. यस सर. ये डाउट, किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर. पक्का? 2 एटमॉस्फेयर कैसे हुआ वो समझेंगे. अच्छा, 2 एटमॉस्फेयर कैसे हुआ? देखो यहां से गैस प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना? यस यस सर. और यहां से एटमॉस्फेयर भी अप्लाई कर रहा होगा और ये 76 सेंटीमीटर भी अप्लाई कर रहा होगा. 76 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग इट इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. हाँ सर, मैंने उसी के हिसाब से लिखा था. हाँ, तो 1 एटमॉस्फेयर प्लस 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर हो गया. अच्छा सर, ओके. सर ए का कैसे? और ए का सर वो बी का, हाँ सर ए का कैसे निकाला? अच्छा, ए इधर से कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस मरकरी कॉलम पे? 2 एटमॉस्फेयर नहीं? हाँ. और इधर से प्रेशर ऑफ गैस ए, यही है ना इसका मतलब? दोनों में से कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? 2 एटमॉस्फेयर की प्रेशर ऑफ ए? 2 एटमॉस्फेयर, क्योंकि 2 एटमॉस्फेयर क्योंकि इसने मरकरी को ऑब्वियसली नीचे ज्यादा पुश कर दिया है. और दोनों में डिफरेंस किसका होना चाहिए? 38 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का. ओके, तो वो 0.5 माइनस क्या? ओके और वो 0.5 माइनस कर दिया उसने से बस. हाँ सर. यस बच्चे, क्लियर है? यस सर. वेरी गुड. तो टिल नाउ हम लोगों ने बैरोमीटर क्या है, मैनोमीटर क्या है, उसका एक आइडिया समझ लिया है ना. सो टिल नाउ हाउ वी मेजर. सर एक बार पीछे कर सकते हो? सो टिल नाउ वी नो कि भाई प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या है, वॉल्यूम के यूनिट्स क्या क्या है, टेम्परेचर के यूनिट्स क्या क्या है. वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या स्केल है, बड़ा सिंपल सा. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर है और प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर या मैनोमीटर है. ठीक है? बच्चे वो क्लियर है? एक मिनट. यस सर. Now, next topic is, let's say, it is gaseous laws. Gaseous laws. So you can say it is combination of, yeah, it is set of, लिख सकते हैं. It is set of different relations. It is set of different relations between state variables. It is set of, let's say,
different relations between state variables calculated approximately by different scientists. ना तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ रिलेशंस फाइंड आउट किए अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स, और वो अप्रोक्सीमेट रिलेशंस है, उन सबको मिला के लेट्स से हम लोग गैसियस लॉज बोल रहे हैं, in which first one as Boyle's law. Sir, Yes. sir, different relations between a set of different relation between state variables, है ना, pressure, temperature, volume, number of moles. Okay, sir. First is, let's say, Boyle's law. It is done by scientist था रॉबर्ट बॉयल, है ना, जिसने वो एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेस पे हम लोग कुछ रिलेशंस फाइंड आउट कर पाए। यस, कुछ बच्चों को ऐसा थोड़ा थोड़ा मालूम होना भी चाहिए था। Yes. तो बॉयल्स ने किया क्या, थोड़ा सा एक आइडिया समझ सकते हो कि भाई लेट्स से ऐसा एक लेट्स से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लेट्स से उसने सिलेंडर ले लिया, जहां से डू यू थिंक ये मैं वॉल्यूम मेजर कर सकता हूं, इसका मार्किंग स्केल अगर होगा तो इस पे, है ना। Yes, sir. सिलेंडर पे मार्किंग स्केल होगा तो हम लोग आसानी से वॉल्यूम मेजर कर सकते थे, और इसको उसने कोशिश किया कि एक थर्मोस्टेट पे रख दिया। जो क्या पर्पस क्या होगा थर्मोस्टेट का, टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोशिश करता। और तुम बताओ सबसे सिंपल थर्मोस्टेट कैसे बनाया जा सकता है, हम लोग आइस और वाटर का कॉम्बिनेशन ले लें, तो डू यू थिंक जब तक आइस पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होता या जब तक वाटर पूरा का पूरा फ्रीज नहीं होता, टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा क्या? यस सर। है ना, तो बड़ा सिंपल सा। सो थर्मोस्टेट का मतलब हो जाता टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेट्स से, है ना। डू यू थिंक किसी भी इंस्टेंट पे मैं इसका वॉल्यूम मेजर कर सकता था क्या गैस का, और विद द हेल्प ऑफ सपोज मैनोमीटर ट्यूब, डू यू थिंक किसी भी इंस्टेंट पे इसका प्रेशर मेजर किया जा सकता था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ डिफरेंट ऐसे वेट के ब्लॉक्स रख सकता था इसके ऊपर, है ना, ऐसा कुछ ब्लॉक्स रख सकते थे हम लोग ऊपर। ब्लॉक्स रखने की वजह से पिस्टन कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, है ना। यस, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और ये शायद मुझे काफी ऑब्वियस सा दिखाई दे रहा है यार। डू यू थिंक अगर ये पिस्टन नीचे जाएगा तो मरकरी दूसरी साइड पे ऊपर चला जाएगा क्या? यस सर। गैस उधर पुश करेगा, है ना। तो बॉयल्स ने क्या किया, यहां से प्रेशर मेजर कर लिया और यहां से उसने वॉल्यूम मेजर कर लिया और बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लिए। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मींस एक ऐसा उसने टेबल ही बना लिया भाई, यहाँ प्रेशर लिखता गया, यहाँ वॉल्यूम। तो यहाँ एक प्रेशर का वैल्यू आ गया लेट्स से P1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1, फिर P2 वॉल्यूम V2, P3 वॉल्यूम V3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो तुम्हें पता है साइंस में दो अगर ये वेरिएबल हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो पता करने के लिए सबसे बेस्ट टूल क्या होता होगा, ग्राफ बना ले उसका, है ना, कि P और V कैसे वेरी हो रहा है एक दूसरे के साथ। तो ग्राफ से अच्छा रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता है ना। जैसे ये मतलब ना कि जैसे शेयर मार्केट में सेंसेक्स कब ऊपर गया कब नीचे गया, कौन सी डेट को ऊपर गया नीचे गया, उसका बेस्ट मेथड क्या होगा रिप्रेजेंट करने का, कि उसका ग्राफ बना दें हम लोग, है ना। तो यहां भी हर एक साइंटिस्ट ने वही किया है, टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। उसने प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ बना दिया। सो ऑन दिस एक्सेस सपोज ने प्रेशर ले लिया, इस एक्सेस पे वॉल्यूम ले लिया।
ये वाली रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, सपोज ये वाली रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मेरे पास यहां आ गया था, फिर दूसरी रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आ गया, तीसरी रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज ये वाला पॉइंट आ गया। तो डू यू थिंक ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग ग्राफ पे यहां ड्रॉ कर सकते थे? यस, ये सपोज ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल गए डिपेंडिंग मैंने कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्सपेरिमेंट किया। यस, तो यहां से ये तो दिख रहा था यार वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या होने वाला है बच्चे? कम होने वाला है ना? कम होने वाली। तो अगर प्रेशर कम होने वाला था, सो दिस कैन बी द बेस्ट फिट डायग्राम। अच्छा, बेस्ट फिट डायग्राम का मीनिंग क्या होता है? मतलब ये शायद सारे के सारे पॉइंट्स को एग्जैक्टली सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली जरूर फाइंड आउट कर पा रहे हैं ना। सो यू कैन से एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड n number of moles, can we say P is inversely proportional to volume? और क्या बोलते हैं इस ग्राफ को? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल, क्या है इस ग्राफ का नाम? पैराबोला। नहीं, ये तुम लोगों को मैंने एटॉमिक का ग्राफ बनाते हुए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ये जो ग्राफ है इट इज नोन एज हाइपरबोला ग्राफ, है ना? अच्छा, डू यू थिंक ये जो रिलेशन है ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है क्या? देखो ये सारे के सारे येलो पॉइंट्स को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ना, तो इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट रिलेशन, बॉयल्स लॉ। सो इट इज अप्रोक्सीमेट। चलो ऐसा जल्दी से लिख डालो यार तुम लोग, जो भी समझ में आ रहा है। तुम लोग सिर्फ ग्राफ भी बना सकते हो। सर वो क्या लिखा है आपने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, तो जैसा अगर मुझे बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट यहां लिखना होता फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि भाई बॉयल्स लॉ क्या है, स्टेटमेंट लिखो। सो यू कैन से एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature volume occupied y given amount of gas is inversely proportional to its pressure. At constant temperature, volume occupied by given amount of gas is inversely proportional to its pressure. यस, ऐसा बोल सकते थे हम लोग। और you can say, let's say PV equal to constant, or simply you can say P1 V1 should be nothing but P2 V2 and so on. I hope कुछ बच्चों ने यार ऐसा कभी 9th 10th ICSE बोर्ड में था क्या कभी 9th 10th में? हाँ सर था सर उसमें, लेकिन बस 3 ही इक्वेशन था, कुछ चैप्टर खत्म हो गया फिर। हाँ मतलब ठीक है, बट इतना तो पढ़ा था ना, P1 V1 equal to P2 V2, नहीं? हाँ सर यही था सर। हाँ सर। देखो अक्षा बोल रही है कि वो IGSC में भी था।
सर यस बच्चे, इसमें कुछ डाउट है? सर वो P proportional to 1/v के नीचे क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेट बेटा, अप्रोक्सीमेट रिलेशन है ना। ये थोड़ा सा याद रखना बेटा, ये जो बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है ना, इट इज अप्रोक्सीमेट रिलेशन। यस लिखा है इतना? यस सर। Yes, sir. सर ऊपर के लाइंस छोड़ दो। जो ब्लैक वाला नहीं लिखा है अभी तक, चलो उसको भी लिख डालो। यस बच्चे लिखा है ऐसा? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, या डू यू थिंक ये सब समझ में आता है कि भाई मतलब हम लोग ये सांस ही कैसे ले पाते होंगे? कुछ लंग्स श्रिंक होता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है ना, तो प्रेशर अंदर बढ़ जाता होगा, तो अंदर से गैस बाहर आ जाता है। यस, और जैसे डायफ्राम नीचे जाता होगा लंग्स का साइज बढ़ जाता होगा, प्रेशर अंदर कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर से अंदर एयर चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना शायद? यस सर। और ये सब पढ़ा रहेगा तुम लोगों के था ऐसा नहीं? यस सर। Yes, sir. था ऐसा. हाँ, गुड। सो लेट्स से नेक्स्ट में इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज, लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, सपोज मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं यहाँ, है ना। मेरे पास एक इरेगुलरली शेप्ड कंटेनर था, है ना। सपोज ये कंटेनर कुछ इस टाइप का था, और इस कंटेनर का मुझे सपोज वॉल्यूम पता करना था, है ना। सो इट इज इरेगुलर शेप्ड कंटेनर। इरेगुलर शेप्ड वेसल है जिसका मुझे वॉल्यूम पता करना था। इसका अगर मुझे वॉल्यूम पता करना था तो इसको मैंने एक थिन ट्यूब से किसी गैस सिलेंडर से मैंने कनेक्ट कर दिया उसको, है ना। लेट्स से किसी गैस सिलेंडर से इसको हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है, जिसके अंदर गैस फिल्ड था। इंटरनली लेट्स से दिस प्रेशर का वैल्यू वाज नथिंग बट 9 एटमॉस्फेयर, और इसका जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज नथिंग बट लेट्स से 2 लीटर। अच्छा, ये जो सब कुछ किया है हम लोगों ने वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया है। सो
at constant temperature, if let's say valve is opened and final pressure is, let's say, 0.5 atmosphere, then find out, let's say, internal volume. Find out internal volume of vessel. You can safely assume कि starting में जो vessel था वो let's say पूरा evacuated था, पूरा खाली था vessel. देखो मुझे किसी एक बच्चे ने आंसर बताया भी है. अच्छा, गैस का कोई लीक नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट. मुझे 2 आंसर मिले हैं अभी तक, बट दोनों आंसर अलग अलग मिले हैं यार. तीसरे बच्चे ने जो आंसर दिया है वो वैसा ही दिया है जैसा एक ने किसी ने पहले दिया था. So obviously मतलब you know कि भाई at constant temperature, at let's say constant temperature and number of moles, you can apply P1 V1 equal to P2 V2. सपोज इसका ये जो वॉल्यूम है इंटरनल वॉल्यूम वो x लीटर ले लो, तो स्टार्टिंग में ये जो प्रेशर है इट इज 9 एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम वाज 2 लीटर. P2 का वैल्यू 0.5 है एंड V2 डू यू थिंक इट इज नथिंग बट x प्लस 2. भाई अभी मेरे पास जो गैस प्रेजेंट होगा वो सिलेंडर में भी होगा और इरेगुलरली शेप्ड वेसल में भी होगा. फ्रॉम हेयर x प्लस 2 का वैल्यू कम्स आउट टू बी 36 लीटर एंड thus x का वैल्यू कम्स आउट टू बी 34 लीटर. यस, वत्सल ने मुझे स्टार्टिंग में सही आंसर बताया था. बड़े जो x का वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 34 लीटर. यस बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है? 2 लीटर इरेगुलर में भी होगा, वो दूसरे वाले में भी होगा, मतलब क्या? अबे नहीं, टोटल वॉल्यूम बेटा, टोटल वॉल्यूम फाइनली गैस कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा. सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वेसल का वॉल्यूम. बीच के ट्यूब में कोई गैस नहीं होगा क्या? नहीं, बीच वाला लेट्स से नेग्लिजिबल है वो, है ना, अदरवाइज तो उसका वॉल्यूम भी दिया ही रहेगा यार. नहीं सर आप वापस बता सकते हो सर एक बार? बेटा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हम लोगों ने अप्लाई किया. स्टार्टिंग का प्रेशर दिया ही था, जहां गैस था वो 9 एटमॉस्फेयर था. हाँ. और उसका वॉल्यूम दिया था कि वो 2 लीटर था. हाँ सर. फाइनली गैस का प्रेशर हो जाना है 0.5 एटमॉस्फेयर, वो भी दिया है. हाँ. तो फाइनली वॉल्यूम हो जाना है लेट्स से x प्लस 2 लीटर. अच्छा हाँ, गैस का वॉल्यूम उसका गैस का वॉल्यूम उतना है ना, जो प्लस सिलेंडर में भी गैस है अभी और उस इरेगुलरली शेप्ड वेसल में भी गैस है अब जो है. तो फिर सर एंटायरली 2 लीटर थोड़ी आएगा. एंटायरली 2 लीटर? 2 लीटर तो कहीं गया ही नहीं है ना. अच्छा अच्छा, तो गैस है अभी वो कंटेनर में भी है और उस वेसल में भी है. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वेसल प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम. हाँ, तो इसलिए x प्लस 2 लिख लिया हम लोगों ने V2 को. ओके सर. यस बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. एक बार आप बता सकते हो वो x प्लस 2 क्यों लिखा? बेटा फाइनली गैस सिर्फ वेसल में ट्रांसफर नहीं हो सकता है ना, तो अभी गैस वेसल में भी है और सिलेंडर में भी है. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया? वेसल का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम x प्लस 2. यस सर. तो मेरे पास जो वॉल्यूम है वो 34 लीटर आ जाता है. लेट्स से इंटरनल वॉल्यूम है ना.
Yes. Okay. We can see few graphs of, let's say, Boyle's law. So you can say graphs related to Boyle's law. Graphs at constant temperature and let's say number of moles. So first graph is on this axis, let's say it is pressure. On this axis, let's say it is volume. और ये ग्राफ तो हम लोग ने अभी देखा था कि ये वाला ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा। यस, ऐसा था ये ग्राफ। हमें ऐसा ग्राफ था कि नहीं? हाँ सर, ऐसा ही। अच्छा, सपोज मैंने अलग अलग टेम्परेचर पे ऐसे ग्राफ बना लिए एंड अनदर ग्राफ इज लाइक दिस, है ना। For temperature T1, for temperature T2 and for temperature T3. क्या बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ग्राफ्स को? हाइपरबोला। कांस्टेंट टेम्परेचर वाले ग्राफ को कुछ ज्योग्राफी में पढ़ा है, आइसोथर्मल। यस सर। आइसो मींस सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर भाई, है ना। ठीक है, सपोज ये आइसोथर्मल ग्राफ है। कैन यू सजेस्ट मी आउट ऑफ टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 कौन सा टेम्परेचर हायर है इसमें? T3। वेरी गुड। मतलब हम लोग शायद कुछ ऐसा, यस, हम लोग कुछ ऐसा एज्यूम कर सकते थे। जैसी ये लाइन मैंने नीचे खींचा तो मैंने क्या कांस्टेंट कर दिया है तीनों ग्राफ के लिए? वॉल्यूम की प्रेशर? वॉल्यूम सबके लिए कांस्टेंट कर दिया है। और आई होप तुमने मोल कॉन्सेप्ट में ये सब बच्चों ने पढ़ा है, P इक्वल टू nRT अपॉन वॉल्यूम। हाँ वही। अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता था क्या, अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, N एंड R तो कांस्टेंट है ना, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसी का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, है ना। N इधर नंबर ऑफ मोल्स है ना सर? N नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो जैसा देखो, एक के लिए प्रेशर ये है, एक टेम्परेचर का प्रेशर ये है और एक टेम्परेचर का प्रेशर ये है, तो किस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर ज्यादा है? T3 के लिए, है ना। So you can say here T3 will be more than T2, will be more than T1. यस बच्चे, कुछ समझ में आ रहा है ऐसा? हाँ सर। तीनों के तीनों ही ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तीनों के तीनों ग्राफ में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, बट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए ग्राफ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना। और उसमें हम लोग ये भी पता कर सकते थे कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। सिमिलरली on this axis, let's say it is pressure, and on this axis it is 1 upon volume. ये कैसा ग्राफ आएगा? Straight line. So straight line from origin. Straight line tending to origin. So you already know कि भाई pressure should be equal to certain constant divided by volume, या you can say certain constant times of 1 upon volume. नहीं? हाँ। ठीक, तो ये आई होप ये ग्राफ सबको क्लियर होना चाहिए, P वर्सेस 1 अपॉन V का ग्राफ, है ना। चलो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है यहाँ। ऑन दिस एक्सेस इट इज PV का मल्टीप्लीकेशन एंड ऑन दिस एक्सेस इट इज P। सेम ऑन दिस एक्सेस इट इज P क्यूब V स्क्वायर and on this axis it is P square V cube. yes, पहले वाला ग्राफ पहले बनाना बेटा। PV वर्सेस P का ग्राफ कैसा आएगा? PV वर्सेस P का ग्राफ सर नीचे से ऊपर आएगा शायद। नहीं बच्चे, ये तो सबसे आसान ग्राफ है ना तुमको। क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। वेरी गुड, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि
पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो मैं प्रेशर को कितना भी इंक्रीज करता रहूं, वॉल्यूम उस रेशियो में कम हो जाता, सच दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन विल रिमेन कांस्टेंट। यस, इज इट क्लियर? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट वाला ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोला। वेरी गुड। So this will be same as this type of hyperbola only. Yes, sir. ये वाला जो ग्राफ होता वो इस टाइप का हाइपरबोलिक ग्राफ ही आ जाता, जिससे फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला मैं ऐसे बोल रहा था यार, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे ना, P मल्टीप्लाइड बाई PV का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते थे V मल्टीप्लाइड बाई PV का स्क्वायर, और जिसमें P एंड V तो कांस्टेंट ही है ना, सॉरी PV का मल्टीप्लीकेशन तो कांस्टेंट ही है। नहीं? यस सर, यस सर। ओके, चलो और ग्राफ अभी ड्रॉ करना। Suppose you have to draw this graph now. It is log of P versus log of V. अच्छा, तुमने थोड़ा बहुत लॉगरिथम पढ़ लिया है ना बेसिक मैथ में? हाँ सर। यस सर। और लॉगरिथम थोड़ा बहुत पहले भी आता रहेगा, नीट वाले बच्चों को भी आता रहेगा इतना लॉगरिथम, तो बेटा ये सबको आता है लॉगरिथम ऑफ xy इक्वल टू log x प्लस log y, ऐसा कुछ? यस हाँ सर, आता है। मतलब ये नीट वाले बच्चों को भी आता रहेगा ना, ऐसा कि नहीं? नहीं? हाँ, थोड़ा टेंथ मतलब ये कुछ ऐसा आता रहेगा ना, log of PV कैन बी रिटर्न एज log of P प्लस log of V, है ना? यस, चलो, है ना? अच्छा वरुण बेटा, ये कुछ ऐसा होता है ना, मतलब log of A इंटू B का जो मल्टीप्लीकेशन है वो log A प्लस log V होता है ना, इस लॉगरिथम का वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी। चलो कोई बात नहीं, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो बताओ ये क्या होगा log P वर्सेस log V का ग्राफ? यस बच्चे, कैसा ग्राफ आएगा ये? सर स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका Straight स्लोप line. -1 है, और जो मतलब y इंटरसेप्ट कुछ है और नेगेटिव स्लोप है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग सीधा सीधा, है ना? तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, नहीं? अच्छा, ये हम लोग कुछ ऐसा समझ लेंगे कि भाई PV इक्वल टू लेट्स से कांस्टेंट था, तो log ऑफ P इंटू प्लस log ऑफ V इक्वल टू log ऑफ K हो जाता, तो log ऑफ P इक्वल टू log ऑफ K माइनस log ऑफ V हो जाता। सो कन्फर्मली log P वर्सेस log V के बीच में जो ग्राफ है, इट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप, है ना? log V को बढ़ाने से log P का वैल्यू कम हो जाएगा, log P को बढ़ाने से log V का लेट्स से वैल्यू कम होगा, और जैसे ही मैं log V को बढ़ाऊंगा log P कम होने वाला, log P को बढ़ाएंगे तो log V कम होने वाला है। log K तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। चलो अब मुझे इसका एक ग्राफ लास्ट बना के दिखाओ। On this axis, let's say it is P square, and on this axis, let's say it is 1/V. एक एक्सिस पे P स्क्वायर है और एक एक्सिस पे 1/V है।
कैसा आएगा ये वाला ग्राफ? सर यू शेप में आएगा। क्या? यू शेप में आएगा शायद। यू शेप में आएगा? नहीं नहीं, ये देखो मैथ्स वाले बच्चों को तो बताना चाहिए ये लोगों को। Sir, vertically increasing straight. स्ट्रेट लाइन आएगा? Yes, sir. नहीं भाई सर हाइपरबोला पैराबोला आएगा। पैराबोला आएगा। यस है ना, ये ग्राफ पैराबोला होना चाहिए। सिंस जैसा वी नो, ये तो सब अब पता है ना कि P इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, है ना? यस यस सर। अच्छा, तो कैन वी से मैं P स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सर्टेन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर? नहीं, मतलब इसको कोई कांस्टेंट K डैश लिख लो या K का स्क्वायर ही लिख लो, क्या टेंशन है ना? अच्छा, डू यू थिंक ये मेरा y एक्सिस पे है ना, P स्क्वायर, और मेरे पास x एक्सिस पे 1/v है, तो डू यू थिंक ये इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता, y इक्वल टू k स्क्वायर x स्क्वायर, है ना? यस तो मेरे पास जो ग्राफ आना चाहिए था वो y इक्वल टू x स्क्वायर जैसा ग्राफ आना चाहिए। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का पैराबोला। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का पैराबोलिक ग्राफ होगा। यस बच्चे, क्लियर है? यस सर। इसको लिखा भी है? हाँ सर। तो सर P और 1/v का, अच्छा y इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो फिर स्ट्रेट लाइन होगा। वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता, तो वो वाला ग्राफ भी ड्रॉ किया था हम लोगों ने। किया था सर, मेरे को याद है। समझ में